So, good evening, everyone. I hope again everyone would be watching this on the YouTube platform when the video shall be posted. Currently, only Sudeshna is listening to the class, and what we studied yesterday was little bit on immunological perspective. Today, we are generally going to discuss something which is related to biochemistry, because yes, biochemistry is a different topic under itself in GATE Excel, but zoology also comprises of a bit of biochemistry portion, especially the enzymatic reactions of the types of enzymes are classified generally in zoology mainly. But yes, in the biochemistry section you can also get some things about the enzymes. Okay, so without wasting much more of the time, I am just sharing my screen. Krishna, can you please confirm that whether the screen is visible or not? Please, Sudeshna, can you just type it in the chat box so that I can get it? Is the screen visible? Okay, fine. So, here is the third day or the third part of the GATE Excel Zoology crash course, and here am I, Revanto, your educator. So basically, before starting off with today's class in details, we have to just think how does enzymes generally work. Now, enzymes, as you all know, is a type of a catalyst and has been classified under biocatalyst segment. Why? Because we in chemistry we have a basic idea about catalysts, because these catalysts are some agents which when added to a reaction generally speed up the reaction, but itself does not play any part in the reaction. That means itself does not get any changes after the reaction. Okay, so similarly, as like a catalyst, these enzymes are also designed like that. It generally speeds up the reactions and it causes the reaction to take place at a lower activation energy state. That means without an enzyme, a reaction would take place at a very higher activation level, but with the addition of a biocatalyst enzyme, the reaction would take place at a very low activation energy level. So in this way, you can find it out over here. This is basically a substrate and this is an enzyme. People do have some misconceptions regarding this thing, that which one is much smaller. It is basically the substrate that is smaller and the enzyme is larger. In various diagrams also in your books you can find over there, in not on in standard books which you follow for biochemistry like Leninger, they are very good books, but in some books there are misconceptions regarding this, that substrate is larger and enzyme is smaller. But the thing or the myth about this is really incorrect, because enzymes are larger, substrates are smaller. Now enzymes comprise of a certain site inside it that is known as the active site. This is the place where the enzyme fits into it. Look over here, it fits into it at this position of the enzyme. So the substrate fits into the enzyme at the active site and forms the enzyme substrate complex. This enzyme substrate complex is very much of greater importance over here, because at this position of the active site only, the exact conversion of the enzyme substrate complex or the conversion of the substrate into product starts occurring. Okay, so first there was a substrate and enzyme which were there not associated with each other. Then the enzyme and substrate got associated with each other to form the enzyme substrate complex. Then what happened is the enzyme gradually caused the substrate to get converted into product very slowly. At the end of the reaction, what happened is that the substrate was almost completely utilized into the product. Okay, so
ये स्टेज होता है कभी कि इंटरमीडिएट स्टेज आता है जहाँ पे 50% सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन होता है, 50% प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जहाँ एक लास्ट स्टेज आता है जहाँ पे 100% जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन था वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है, और हमारे पास जो ऑब्टेन हम लोग करते हैं वो होता है प्रोडक्ट कितना फॉर्म कर जाता है, 100% का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। सो जब भी 100% प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, एंजाइम से जो प्रोडक्ट नया वाला आया है वो प्रोडक्ट अलग हो जाता है, और प्रोडक्ट अलग हो जाने के बाद जो होता है एंजाइम और प्रोडक्ट का एक अलग अलग रूप दिखाई देता है। सो इन दिस वे बेसिकली द एंजाइम्स जनरली वर्क. So basically I was talking about this area in the enzyme. Look over here again, the enzyme is of larger size and substrate is very small with comparison to the size of the enzyme. And the enzyme, what happens is that it is having certain clefts down here in its structure into which the substrate generally fits in. Okay, so it is like just like a lock and key. You can find in the lock that you have to insert a certain key only, then only you can open that lock. All keys do not fit for a single lock. Okay, so in this manner enzymes are also like a lock and substrate are like the keys. Okay, so there was a hypothesis that is known as the lock and key hypothesis in case of enzyme action. So in this way enzymes generally work. So now we would be looking at the major classes of the enzymes. There are several classes of the enzymes that are available, like the oxidoreductases, the transferases, the hydrolases. Then we have the lyases, isomerases, and the ligases. This is the overall broad view section classification of the enzymes. Now you do not have to remember what exactly the functioning of the enzymes can be, but yes, you should remember that how it works. Okay, so like in case of oxidoreductase जो वर्ड है इसमें इसका फंक्शन छुपा हुआ है. ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दोनों एक साथ कर सकता है. दैट मीन इट कैन ट्रांसफर H and O atoms, or it can be in the form of electrons from one substance to another. It's better to remember it in the form of electrons because oxidation or reduction it takes place via the process of the transfer of electrons. अगर किसी जगह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, सबस्ट्रेट बनता है, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है. अगर सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और प्रोडक्ट बनता है तो सबस्ट्रेट के थ्रू वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाया जाता है. इफ अ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, दैट प्रोसेस वुड बी अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Now if an electron is added to a substrate or a product you might be saying, then that is a reduction reaction. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाया जाएगा. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है वो वाला रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है. इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है. ये दोनों सेम ही टर्म है क्योंकि यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑफ अ नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इज जनरली टर्म्ड एज अ प्रोटॉन. So whenever there would be a removal of electron, yes, it's quite natural that the hydrogen would leave with it. So in this way the reduction or the oxidation processes go on, and the enzymes which catalyze such reactions are known as oxidoreductases. Very common example are the dehydrogenases, the oxidases. ट्रांसफरेसेस के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप रहता है, किसी भी कोई भी बड़ा कंपाउंड या फिर सब्सटेंस उठा लो तुम लोग, वहाँ पे देखोगे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स रहता है, जैसे कि OH ग्रुप रहता है, COOH ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं इनको. तो ये वो फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में. तो इस प्रॉपर्टी को शो करने वाला जो एंजाइम्स है उसको हम ट्रांसफरेज के नाम से जानते हैं. ये मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है, अमाइनो ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप का, ये सारे जो ग्रुप्स है इनका ट्रांसफर होता है. और इस प्रोसेस को हम लोग जिस एंजाइम के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं ये नाम, इसका नाम है ट्रांसफरेज. तो ट्रांसअमाइनेज या फिर काइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, फॉस्फेट को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम.
फॉस्फेट फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम, ट्रांसएमिनेज अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। सो ये सारे जो एंजाइम्स है ये ट्रांसफरेज के अंदर क्लासिफाइड। देन देयर कम्स हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के क्षेत्र में जो होता है वो है कि जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हाइड्रोलाइसिस यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, नहीं रिमूवल नहीं, एडिशन ऑफ वाटर के द्वारा यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का सबस्ट्रेट से बनता है। एग्जाम्पल्स कैन बी लाइपेज, एमाइलेज, पेप्टाइडेज। So lipase, amylase, peptidases are the examples of the hydrolysis. You can find over the examples down here like AB plus H2O is AOH plus BH. So जहाँ पे वाटर के एडिशन हो रहा है वो सबस्ट्रेट का हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से जनरली एक्ट करने वाला एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइसिस। देन देयर कम्स अ डिफरेंट क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज लाइसेस। ना लाइस के यहाँ पे जो होता है नॉन हाइड्रोलाइटिक एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ groups from substrates or substances. That means non-hydrolytic addition या फिर उसका removal of groups from substrates जहाँ पे होता है वो लायस दिखाता है। लाइक ये वाला रिएक्शन तुम लोग देखो, RCO COOH ये एक ग्रुप है और यहाँ से जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया और RCOH सिर्फ पड़ा रहा। तो ऐसे ही लायस फंक्शन करता है, यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है, राइट, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स इज डिकार्बोक्सिलेशन। तो लायस का एग्जांपल हो गया डिकार्बोक्सिलेशन। देन देयर कम्स अ इजी क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज आइसोमरेज। यहाँ पे तुम लोगों को पता है कि आइसोमरेज का फंक्शन बहुत अच्छे से देखा जाता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, जहाँ पे हम लोग जानते हैं फ्रुक्टोज ग्लूकोज 1,6-बिस्फॉस्फेट से फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज वहां पे एंजाइम काम करता है और वो उसको फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो एंजाइम वहां पे काम करता है उसको हम लोग आइसोमरेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बेसिकली सेम है। कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो मॉलिक्यूलर बेसिस से पता चलता है लाइगेट कर रहा है। लाइगेट करने का मतलब जोड़ रहा है, दोनों सबस्ट्रेट को जोड़ के एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हम लोग लाइगेज के नाम से, जॉइन टुगेदर टू मॉलिक्यूल्स बाय द सिंथेसिस ऑफ न्यू CO, CS, CN और CC बॉन्ड विद अ साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन ऑफ ATP। यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ATP देखा जाता है। सो यहाँ पे देखो X और Y को जोड़ रहा है और यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP विच इज कन्वर्टेड टू ATP एंड PI, और XY जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, ठीक है, लाइगेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग सिंथेटेज के नाम से जानते हैं। So these are the basic classification of enzymes. The 6 categories of enzyme classification: oxidative reductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligase. Oxidative reductase transfer in electron results in the change in the oxidation state. Transferase transfer of functional group मैंने बोला है। Hydrolase breakdown of a covalent bond किसके माध्यम से? जल के माध्यम से, water के माध्यम से। Lyase ब्रेकडाउन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड विदाउट वाटर और ऑक्सीडेशन। यहाँ पे वाटर या फिर ऑक्सीडेशन कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। हाइड्रोलेज और लायज में यही बेसिक डिफरेंस है। हाइड्रोलेज में वाटर इन्वॉल्व होता है, राइट, और यहाँ पे लायज में वाटर ऑक्सीडेशन कुछ नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ा जाता है। क्या कैसे तोड़ा जाता है? एक CO2 ग्रुप को रिमूव करके। CO2 एज एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, लाइक डी कार्बोक्सिलेज के क्षेत्र में ऐसा होता है। देन आइसोमरेज के क्षेत्र में जो देखा जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स विद अ मॉलिक्यूल, ये तो सबको पता है, लाइगेज में जोड़ा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू लार्ज मॉलिक्यूल। सो आई होप दैट दिस सेक्शन इज very much clear to you all, and we would move on to the next thing. This is known as the Michaelis-Menten equation. So Michaelis-Menten equation is a very much important equation with respect to the kinetics in which an enzyme generally works. So we have learned about the statics of the enzyme, like what are the classification of enzymes, how an enzyme generally works. These are the statics
kinetics of an enzyme. But how does an enzyme function by itself is known, classified under a separate segment that is known as enzyme kinetics. And in this enzyme kinetics, the two things which are important in terms of gate zoology is basically the one is the Michaelis-Menten equation, the second one is the Lineweaver-Burke plot. So first let's look into the Michaelis-Menten equation. तो Michaelis-Menten equation में जो है यहाँ पे वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये दो टाइप के वेलोसिटीज यहाँ पे अवेलेबल है. सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ये भी अवेलेबल है. तो फॉर्मूला जो है ये होता है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस एक्स. और हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी को हम km से डिनोट करते हैं और Vmax जो है ये है मैक्सिमम वेलोसिटी और km जो है ये होता है सबस्ट्रेट, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ Vmax को हम लोग km से डिनोट करते हैं. तो ये है बेसिक फार्मूला. प्लीज रिमेंबर दिस फार्मूला बिकॉज क्वेश्चन वुड कम फ्रॉम दिस, like V0 would be given, Vmax would be given, km would be given, and you would be like told to find substrate concentration. Or somewhere V0, S and km would be given, you will be asked to find out the Vmax of the reaction. So in this way questions come and go in different competitive exams. Next thing which we would be discussing is the Lineweaver-Burke plot for the inhibition. Lineweaver-Burke plot, लाइनवीवर-बर्क प्लॉट जो है यहाँ पे हम लोग जनरली इनहिबिशन के रेस्पेक्ट में लाइनवीवर-बर्क प्लॉट को देखेंगे और उसके साथ हम लोग जनरल केस में भी इसको स्टडी करेंगे. और जनरल केस की बात ली जाए तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे जो y एक्सिस है यहाँ पे 1/v के टर्म से डिनोट किया जाता है और यहाँ पे जो x एक्सिस है इसको हम लोग जनरली 1/s या फिर 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा हम लोग उसको डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे जो जब इनहिबिटर नहीं रहता है तो इसका डायमेंशंस कुछ ऐसा रहता है. ये देखो डायमेंशंस कुछ ऐसा है. अगर इनहिबिटर आ जाता है तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स दैट आर अवेलेबल इन केस ऑफ द एंजाइम काइनेटिक्स. A type of inhibitor is known as competitive inhibitor. Another type is known as uncompetitive inhibitor. Another type is a non-competitive inhibitor. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में देखा जाता है कि km जो है वो बढ़ जाता है, Vmax जो है वो अनअफेक्टेड रहता है. अनकम्पिटिटिव में देखा जाता है km रिड्यूस होता है, Vmax भी उसके साथ रिड्यूस होता है. नॉन कम्पिटिटिव में पूरा उल्टा केस होता है, Vmax जो है वो रिड्यूस हो जाता है लेकिन km अनअफेक्टेड रहता है. km इंक्रीज हो रहा था कहाँ पे, कॉम्पिटिटिव में, लेकिन km का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कहाँ पे, नॉन कम्पिटिटिव में. Vmax अनअफेक्टेड कहाँ पे था, कॉम्पिटिटिव में, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में जो है km जो है वो अनअफेक्टेड रहता है लेकिन Vmax जो है वो रिड्यूस हो जाता है. तो दिस इज बेसिकली मतलब जो है यहाँ पे एक उल्टा चित्र देखा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में, और अनकॉम्पिटिटिव में दोनों घट जाते हैं, km भी घटता है और उसके साथ Vmax भी घट जाता है. तो ग्राफ का पैटर्न देखो, जहाँ पे क्रिस क्रॉस है वो कॉम्पिटिटिव है, जो पैरेलल है वो अनकॉम्पिटिटिव है, और जो ओरिजिन ऑफ द ग्राफ सेम है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है. तो ऐसे ही लाइनवीवर-बर्क प्लॉट के माध्यम से हम लोग कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस को डिनोट करते हैं. क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दिस एरिया, आई एम जस्ट मेंशनिंग यू दैट. So another thing which would be discussing today would be from where are different enzymes that are involved in our digestive system are generally secreted. तो इसोफेगस में या फिर हमारे सलाइवा में जो एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उन एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज. तो सलाइवरी एमाइलेज जनरली डज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज. ओके, सो माल्टोज का कन्वर्शन फ्रॉम स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज के माध्यम से होता है. देन हम लोग का जो खाना है वो स्टोमक में चला जाता है. स्टोमक में आने के बाद यहाँ पे प्रोटीएजेस एक्ट करता है. प्रोटीएजेस एक्ट करने के बाद प्रोटीन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है.
प्रोटीएज का काम ही है ये करना कि प्रोटीन जो है बहुत लंबा चेन होता है, लंबा चौड़ा चेन होता है, उस चेन को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स यानी पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। और उसके बाद स्टोमक के जो एसिड्स होते हैं वो एसिड जनरली एक्ट करते हैं और केमिकल डाइजेशन में एड करते हैं। देन लिवर एंड गॉल ब्लैडर, बाइल सॉल्ट्स ये जो काम करता है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ द लिपिड। तो लिपिड का डाइजेशन जनरली जो करता है वो ये बाइल सॉल्ट्स है, जो कि ना लिवर गॉल ब्लैडर में से सिंथेसाइज होके प्रोसेस्ड होके आता है। So liver and gallbladder is involved in the synthesis and the processing of the bile enzymes and the bile salts that are involved in the digestion and the emulsification of lipids. Then there comes pancreas. Pancreas में बहुत सारे enzyme systems involved है, like amylase enzyme system जो यहाँ पे भी starch को maltose में convert करता है। Lipase enzyme सिस्टम भी होता है जहां ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ना ट्राइग्लिसराइड्स बहुत लार्ज यूनिट्स ऑफ लिपिड्स होते हैं जिनको फैटी एसिड में कन्वर्ट किया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं जहां पे पेप्टाइड्स का अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूक्लियसेस है जहां पे डीएनए या फिर आरएनए को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। बाइकार्बोनेट आयंस है जहां पे स्टोमक के जो स्टोमक का जो HCl जो एसिड है, जो H और Cl मिलके HCl एसिड बनाता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस जनरली आर इन्वॉल्व। ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जो देखा जाता है वो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जनरली मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स आर जनरली फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द एग्जांपल इज माल्टेज। ओके, सो माल्टेज जो है वो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो इसोफेगस में एमाइलेज एंजाइम जो सलाइवरी एमाइलेज है, स्टोमक में प्रोटीएज स्टोमक एसिड, लिवर में बाइल एंजाइम लिवर या फिर गॉल ब्लैडर में, और पैनक्रियाज में एमाइलेज, लाइपेज, एंडोपेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, ये सारे इन्वॉल्व है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ अ क्वेश्चन व्हिच विल बी सॉल्विंग टुडे इज with the enzymes, and with this basically what I have followed the last 5 or 6 years scheme in case of enzyme kinetics. I have found out that in case of zoology the things which are generally being asked from the enzymes are like these things only. Okay, so please follow these things what I have mentioned today, and please follow this chart. Okay, you have to just follow or go through this chart in detail because questions have been coming here and there from this chart. So this is a very important chart involving oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, ligases. Then you can just go through this area because how enzymes generally work, what is the active site. Okay, active site में change होने पे क्या हो सकता है, ऐसा भी questions पूछे जा सकते हैं। देन न्यूमेरिकल जो सेगमेंट है, न्यूमेरिकल सेगमेंट में लास्ट 2021 और 2020 में दो बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। V0 इक्वल्स टू Vmax इंक्रीज बाई Km प्लस S। तो ये वाला सेगमेंट बायोकेमिस्ट्री में भी एक बार आया था। अगर कोई बायोकेमिस्ट्री सेक्शन ऑप्ट कर रहा है तो 2022 का 21 का पेपर उठा के देख सकते हो कि वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इस जगह से था। सो you can remember, you can understand the importance of this area. So you will be given the values in the form of V0, Vmax, Vm. We have to need to find S. Okay, or anything would be given, but please do mark up this formula by heart. Then you can questions can come in which type of inhibition does Km increase and Vmax is unaffected. You will be given all these options and be asked to say which one. In which of the following inhibition is the graph parallel to each other? You will be given the options and you will be asked in which of them. So this is very much important in terms of gate Excel, and questions have come from this Lineweaver bar plot. I will just show you one of the questions. Okay, so competitive inhibition के क्षेत्र में तुम लोगों को एक और चीज़ जो मैं बोलने वाला था अभी बोलना भूल गया, ये है कि competitive inhibition जो है यहाँ पे देखा जाता है कि जो मॉलिक्यूल इनहिबिट करता है वो डायरेक्टली आके इस एक्टिव साइट में बैठ जाता है, और वो मॉलिक्यूल जो है
जो एंजाइमेटिक एंजाइम का एक्टिव साइट है यहाँ पे आके बैठ जाता है. इट सिट्स ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम. एंड व्हाट इज वेरी मच नेसेसरी टू सी इज दैट इट ऑलमोस्ट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर को डायरेक्टली रिजेंबल करता है कौन? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. And if the competitive inhibitor resembles the structure of the substrate, you can understand that it can directly fit into the enzyme. And this is a very much important method to inactivate various enzymes in our body that may be harmful throughout the processes which are going on, the metabolic processes which are going on in our body. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यही एक माध्यम है कैसे वो इनहिबिट करता है. अगर तुम लोग ये करो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सबस्ट्रेट से और उससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जो है इनहिबिटर तुम डाल दो वहाँ पे, तो ये हो सकता है कि सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट पकड़ के रखा था वहाँ पे एंजाइम के, वहाँ पे जो एक्टिव साइट को पकड़ के रखा है, ये देखो यहाँ पे प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पे जो एक्टिव साइट को पकड़ के रखा है सबस्ट्रेट ने, ये सबस्ट्रेट यहाँ से डिसलोकेट हो जाएगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो इनहिबिटर्स थे वो यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे ये हो सकता है कि इनहिबिटर जब ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो तुम लोग ये कर सकते हो कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट, मेन सबस्ट्रेट है ये वाला सबस्ट्रेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, इनहिबिटर से भी ज़्यादा. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इनहिबिटर से ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये हो सकता है फिर से कि इनहिबिटर यहाँ से डिसलोकेट हो जाए और सबस्ट्रेट फिर से आके यहाँ पे बैठ जाए. सो इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट वुड लीड टू द डिसलोकेशन ऑफ द इनहिबिटर. और ये सिर्फ इन एंजाइम्स में ही देखा जाता है, इस टाइप के इनहिबिशन में ही देखा जाता है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है. सो दिस इज बेसिकली हाउ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस जनरली वर्क्स इन केस ऑफ द एंजाइम काइनेटिक्स. ओके, सो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो वर्क करता है एंजाइम काइनेटिक्स के माध्यम से. और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है इस प्रोसेस के वजह से, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ और टाइप के जो इनहिबिटर पैटर्न्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे एक्टिव साइट को इन्फ्लुएंस ना करें. ठीक है, एक्टिव साइट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना ही कर सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में डायरेक्टली एक्टिव साइट का कन्फर्मेशन जो है वो मतलब एक्टिव साइट का जो एरिया है वहाँ पे आके इनहिबिटर डायरेक्टली बाइंड कर सकता है. ठीक है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था, मतलब पढ़ा था, यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में ये देखा जाता है कि जो एंजाइम है, यहाँ में मैंने बोला था ये वाला एंजाइम. नाउ दिस एंजाइम comprises of a different site down here. Okay, that site is known as the allosteric site. And in the allosteric site, what happens is that an inhibitor may just bind to that allosteric site. And binding of an inhibitor to that allosteric site, what it does is that it changes the conformation of these active sites. अगर तुम सोचो किसी ताले का अगर कॉन्फॉर्मेशन, यानी कि अंदर हम लोग कुछ ज़्यादातर मिट्टी घुसा दे, उस ताले के जो पोर है वहाँ से की हम घुसाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी घुसा दे, मिट्टी को अगर घुसा देंगे वहाँ पे, तो जो चाबी है उसको अगर हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो चाबी ठीक से इंसर्ट नहीं हो पाएगा. तो सिमिलर इज ट्रू इन केस ऑफ द एंजाइम एलोस्टेरिक इनहिबिशन, इन केस ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखा जाता है कि एंजाइम कंप्राइजेज ऑफ अ डिफरेंट साइट other than the every enzyme comprises of a different site other than the active site, that is known as the allosteric site. And whenever an inhibitor sits on the allosteric site for inhibiting the reaction, changes the conformation of the active site
and this substrate cannot bind to this enzyme, and in this way the process of allosterism generally works. Okay, so नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे ही काम करता है. और जो थर्ड टाइप का इनहिबिशन था, यानी कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जहाँ पे पैरेलल ग्राफ देखे जा रहे थे, वहाँ पे जो होता है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो पहले से ही एंजाइम से बाइंडेड रहता है, और सबस्ट्रेट जब भी आके यहाँ पे बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट जो है वो ठीक से एक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉपर बाइंडिंग ही फैसिलिटेटेड नहीं होगा. ठीक है, एंजाइम और उसके साथ जो इनहिबिटर है वो एक साथ ही बाइंडेड रहेंगे, यानी सबस्ट्रेट जो है वो ठीक से बाइंड ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे. सो इन दिस वे बेसिकली द नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड as well as the competitive inhibitors generally work. So this is the process by which inhibition process generally takes place in case of the enzyme kinetics. So I hope that it was understandable. I hope this question is also easier to you now, because I have mentioned many things orally. Okay, कुछ चीज़ें स्लाइड्स में मेंशन नहीं होंगी, मैंने बोला था, जो मैं क्लास के वक्त बताऊंगा, और आई होप दैट यू ऑल हैव जस्ट जॉटेड दोज डाउन. ओके, द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिटर्स कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ द सबस्ट्रेट. सो मैंने बोला है ये चीज़ कि जो एंजाइम इनहिबिटर्स है उनको ऐड करने की वजह से ये हो सकता है कि जो एंजाइम का प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए. जो एंजाइम इनहिबिटर का प्रॉपर्टी और एंजाइम सबस्ट्रेट का प्रॉपर्टी है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि द एक्शन ऑफ द क्लास ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कैन बी रिवर्स बाय एडिंग एक्सेस ऑफ द सबस्ट्रेट. सो इफ यू एड एक्सेस सबस्ट्रेट एंड यू कैन रिमूव द इनहिबिटर फ्रॉम वेयर इट इज इनहिबिटिंग, देन यू मस्ट श्योरली बी नोइंग that the inhibitor is directly competing with the substrate for binding to the active site of the inhibitor. और अगर कंपटीशन का बात आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो इनहिबिटर्स है ये compete कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, तो ये इनहिबिटर्स जो है वो क्लासिफाइड है किस तरीके के इनहिबिटर्स के अंदर? ये क्लासिफाइड है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर. तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं. एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स है, ये सारे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स है. अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ पे? जहाँ पे एंजाइम के साथ इनहिबिटर पहले से बैठा हुआ है और उसके बाद फिर से सबस्ट्रेट आ रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट ठीक से बाइंड नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से जो इनहिबिशन हो रहा है वो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ही ऐसा टाइप का इनहिबिशन है जहाँ पे एक्सेस सबस्ट्रेट के एडिशन के वजह से जो इनहिबिटर्स है वो रिमूव होके, डिसलोकेट होके वहाँ पे आके डायरेक्टली एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्टली बाइंड करता है. मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने से जो इनहिबिटर जो एक्टिव साइट में बैठा हुआ है एक एंजाइम है वो डिसलोकेट हो जा सकता है और सबस्ट्रेट आके एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो सकता है. तो ऐसे टाइप के इनहिबिशन को हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के नाम से जानते हैं, और इस टाइप के इनहिबिटर्स को हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं. So this was all about today, and we have discussed about enzymes, and probably we have discussed everything that is related to enzymes and which comes in GATE Excel generally in the zoology section. I hope many things would be coming in the biochemistry section as well from what I have dealt today. If some people amongst you are generally dealing in biochemistry,